would like to first of all let you know what would be the pattern of today's class and what we will try to cover. And before that, I would like to give my own introduction. My name is Kamar Baloch, and I'm teaching economics to O levels and A level students from last many years. Alhamdulillah, around 16, 17 years. I have 16 years experience around, and मोहसिन साहब कैन यू चेक इस वक्त स्क्रीन शेयरिंग की ऑप्शन मेरे पास नहीं आ रही. Okay, Mohsin Saab, can you check why I'm unable to share my screen? Just a second, there are some technical issues. I'm trying to share my screen. Okay, so finally done. Okay, so I was introducing myself. My name is Kamar Baloch, and I'm teaching economics to O levels, A level, and IGCSE students from around last 16 years. And currently, I'm connected with Beacon House Margla campus, that is BMI in Islamabad. And I'm also teaching in Lahore Grammar School, LGS Defense Islamabad branch, and I'm also teaching in Roots International School System as well as Barrier College Islamabad. Okay, so these are the institutions I'm affiliated with. I'm a visiting faculty member of A levels there, and I also used to teach economics to O levels as well. And I have also authored some books relevant to OA level economics, and they are 13 in number. They include textbooks, they include uh, like helping books, MCQs. Okay, so these are multiple. I'm teaching in Islamabad. All schools are in Islamabad. Okay, so these are basically the basic information relevant to me. And now the pattern of our class will be, it will basically continue for 2 hours, and 2 hours class. During this class, we will be focusing on a quick revision of the topic. Initially, we will basically discuss the basic things which are included in the topic, and then we will quickly move to the MCQs, and we will cover at least 5 MCQs relevant to each topic, and there are around 20 topics, so 20 into 5 makes 100. So 100 MCQs we will discuss topically, and afterwards we will do one complete 30 marks MCQs exam at the end. Okay, so this is the pattern. So simple pattern, and you will have to be quick, and I will be sharing with you the screen, and you can quickly see the question, and you can immediately answer what question you think is, what option you think is the correct option. Okay, so this is basically content, table of content, which we will be covering. You can take screenshot of this page, and we will continue these topics. And
डेफिनेटली जो भी टॉपिक हम कर रहे होंगे उसको मैं यहाँ पे टिक कर दिया करूँगा कि ये टॉपिक हमने कर लिए, और एग्जैक्टली सेम पैटर्न नहीं होगा, द पैटर्न में बी डिफरेंट, मतलब सीक्वेंस में बी डिफरेंट. ओके, सो स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट टॉपिक of the first chapter, that is chapter number 1. And in chapter number 1 we have different concepts, like we have the definition of economics. We will discuss the definition and topics covered in microeconomics, topics covered in macroeconomics, and then we will talk about the basic concepts including needs, wants, scarcity of resources. And during discussing scarcity of resources, we will also discuss the factors of productions, FOPs. And then we will talk about opportunity cost, and afterwards we will be doing production possibility curve. This is the technical topic in chapter number 1. And we will also discuss about primary, secondary, and tertiary industries in chapter number 1, tertiary industries. So these are the topics which are included in this first chapter. So defining economics. Economics is the science of wealth which deals with limited resources and satisfying unlimited wants. So economics is also defined as the science of wealth. Adam Smith was the founder of this subject, who said that economics is a science of wealth. So when we say it is science of wealth, it does not mean that it is a pure science, rather it is social science, right? It deals with, so it is known as social science. Okay. Then comes microeconomics and macroeconomics. Microeconomics is the branch of economics which deals with economic issues at individual level. So individual level issues are discussed in microeconomics. For example, demand of a certain person, demand of a certain firm, or supply of a certain firm. And macroeconomics deals with aggregates, overall economy. For example, if we discuss aggregate supply of all the firms which are producing goods and services in a country, that would be macroeconomics. And microeconomics is the branch of economics which deals with economic issues at individual level. For example, demand of a single person. So if I move back to the table of content I shown you previously, examiner generally asks which topic is included in microeconomics and which is included in macroeconomics. So keep in mind, topic number 1, that is basic economic concepts, economic systems, demand and supply, equilibrium, disequilibrium, price elasticity of demand, price elasticity of supply, taxes and subsidies, market failure, public private expenditure, so specialization, money and banking, trade union, labor market, saving, business unit, stock exchange, cost and revenues, economies, integration, market structure, including perfect competition and monopoly. All these topics are microeconomic topics. So topic number 1 to topic number 20, these are microeconomic topic. And then government aims, fiscal policy, monetary policy, inflation, unemployment, national income, these topics, international trade, etc. These are the topics of macroeconomics. So you must keep in mind which topics are included in micro and which topics are included in macro. इसमें से एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता है स्पेशली कि which of the following topics are included in microeconomics and which are not included in microeconomics. इस तरह से क्वेश्चन वो पूछते हैं, माइक्रो का या मैक्रो का पूछ लेते हैं, उसको भी हम डिस्कस कर रहे होंगे इंशाल्लाह. Then needs are basic necessities of life like food, shelter and clothing, and wants are desires for luxurious things. And okay, so wants are desires for luxurious thing, and scarcity mean resources are limited in supply and wants are unlimited. And resources include factors of production, and factors of production are basically land, labor, capital, and enterprise. So
These are basically the factors of production or resources. Land mean all natural resources, and the reward for land is known as rent, or the income of land is known as rent. Then comes labor. Labor is the physical or mental effort that is incorporated to produce goods and services. And the reward for labor is called wages, or income of labor is wages. Capital mean man-made resources that are used to produce further goods and services, and it includes machinery, technology, and tools. Then is enterprise. Enterprise is the risk-taking ability of entrepreneurs in which they combine land, labor, capital to produce goods and services. And the reward for capital is known as interest, and the reward for enterprise is known as profit. So these are the rewards or income of different factors of production. And scarcity means resources are limited and wants are unlimited. Opportunity cost is basically choosing one thing and sacrificing something else is opportunity cost. Whatever we sacrifice is opportunity cost. Technically, we say that opportunity cost is the cost of next best alternative for one to choose another item. And then comes primary, secondary, tertiary industries. Primary industries relate to the natural resources like farming, fishing, poultry. Okay, so farming, fishing, all kind of natural resources are basically relevant to primary industry. Secondary industry relates to manufacturing and construction. So manufacturing and construction, these are basically two types of business activities which are under secondary industry. Tertiary industry is relevant to the service industry and all kind of services like banking, transportation, communication, warehousing, advertising, all kind of services are the part of tertiary industry. Okay, so now coming to the production possibility curve. This is the technical part of this chapter, this first chapter. And production possibility curve PPC is defined as a graph that shows different combinations of two products that can be produced by using given amount of resources. And production possibility curve looks like this. I'm making graph of production possibility curve. So we basically show two products on one on x-axis and the other one on y-axis. तो x पे अगर फॉर एग्जांपल हम नाम दे देते हैं x गुड है, कोई x गुड कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है. लेट्स से कि ये हमारे पास बनाना है, बनाना, and on y axis we have y good, and let's say this is apples. So ये दो products हैं जो हम यहाँ पे show करें. And production possibility curve looks like this. This is the general shape of production possibility curve. For example, if we produce OX quantity of banana, then we will have to sacrifice OY quantity of apples. So O, for producing OX quantity of banana, we will have to sacrifice all quantities of apples. So OY will be the opportunity cost. And sometimes examiner gives an option that initially we are operating at point A where production of Y good is, let's say Y1, या फिर इसको कोई quantity दे देता है. Let's suppose कि 150 quantity है and we can produce, let's say, 100 bananas. If now we want to produce more bananas, then we will have to move from point A to B. It means that now production of Y will decrease from Y1 to Y2. There is, let's suppose now we can produce 90 units of apples, but we can produce 120 units of banana. So by moving from point A to B, we are sacrificing or we are losing this much quantity. This makes 60 apples which are sacrificed, and this is the opportunity cost. So one thing is really common, which is asked by the examiner. You will have to find out opportunity cost from this graph. And other thing that is relevant to this production possibility curve, वो हमारे पास क्या है, वो ये है कि production possibility curve में जो shifts आती हैं उनके बारे में वो पूछ रहा होता है कि shifts क्यों आती हैं. For example, अगर हमारे पास initially production possibility curve was XY, now it moved to the right to X1 Y1. तो इसकी logic क्या होती है, इसकी reason क्या होती है, why it moves to the right. जी, इसके लिए एग्जामिनर अक्सर पूछ रहा होता है एग्जामिनर आपसे कि इसकी क्या रीजन हो सकती है. ओके, सो क्या रीजन होगी जब भी पीपीसी राइटवर्ड शिफ्ट होता है. दिस इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज.
अगर आपके पास रिसोर्सेज जो हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ जाए, इंक्रीज इन क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हमारे पास वही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लाइक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की अगर हमारे पास क्वांटिटी यानी नंबर में बढ़ जाए, हमारे पास नई लैंड आ जाए, लेबर आ जाए, कैपिटल आ जाए, तो उससे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी राइट को चला जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास रिसोर्सेज कम हो जाते हैं तो रिसोर्सेज कम होने से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को हमारे पास लेफ्ट को शिफ्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन ये एग्जामिनर पूछ रहा होता है कि शिफ्ट किस वजह से आएगी, लाइक टेक्नोलॉजी अगर अच्छी हो जाएगी तो पीपीसी राइट को चला जाएगा, लेबर की ट्रेनिंग और एजुकेशन हम करेंगे तब भी पीपीसी राइट को चला जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास रिसोर्सेज की क्वांटिटी या क्वालिटी कम हो जाए तो पीपीसी इनवर्ड आ जाएगा, यहाँ लाइक X2Y2 की तरफ हमारे पास पीपीसी आ जाएगा। इसके अलावा एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछते हैं कि लाइक इफ देयर इज एनी पॉइंट आउटसाइड द पीपीसी, इसके बारे में पूछता है कि दिस इज अटेनेबल और नॉट, लाइक डिफरेंट पॉइंट्स दे देगा। सपोज करें दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट डी। एग्जामिनर पूछता है कि कौन सा पॉइंट है जो अटेनेबल है, कौन सा अटेनेबल नहीं है। सो ए ऑप्शन जो है अटेनेबल नहीं है, बी और सी और डी ये सारे अटेनेबल हैं। ठीक है, सो लेकिन डी जो है ये साथ में अनएम्प्लॉयमेंट भी शो करता है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि आपके जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो तो है, बट दे आर नॉट बीइंग यूटिलाइज। तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। नाउ वी आर मूविंग टू प्रैक्टिकली मूविंग टू द रेलेवेंट क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ रहा होता है, उनके आंसर्स क्या होंगे। एंड पैटर्न इज कि आप क्विकली इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, आप लोग इनके आंसर्स चैट में लिख रहे होंगे और एट द एंड हम इनको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। जी, इसको ज़रा क्वेश्चन को पढ़ें और आई थिंक एवरीवन शुड राइट आंसर इन कमेंट बॉक्स। ठीक है जी, ओके। सो क्वेश्चन 1 2 3 ये 3 क्वेश्चंस कर लें, फिर इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जी ओके, सो क्वेश्चन के साथ लिखते रहें, जैसे 1C आप कह रहे हैं तो उसको साथ लिखते हैं 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर लिख दें ताकि आइडेंटिफाई करना आसान होगा कि आप किस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। ओके मनाल एंड बिनते फैसल, ठीक हो गया बेटा। चलें, होपफुली आप में से सब लोगों ने क्वेश्चंस को पढ़ लिया होगा एंड आप लोगों ने सोच भी लिया होगा कि क्या आंसर होना चाहिए। सो आई एम मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 1। एन अनएम्प्लॉयड वर्कर एक्सेप्ट्स अ जॉब, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, एक बंदा जो पहले कोई काम नहीं करता था तो अब वो, जी ओके बिनते फैसल, हम कोई और क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर एक बंदा पहले कोई काम नहीं करता था, अब वो जॉब कर रहा है, तो इट मीन के जो लेजर टाइम उसका था वो अब उसने लूज कर दिया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है हॉस्पिटल कैन नॉट ट्रीट ऑल पीपल। तो ये किस चीज़ की एग्जांपल है, दिस इज एग्जांपल ऑफ स्केर्सिटी, मीन रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तभी एक हॉस्पिटल सारे लोगों को ट्रीट नहीं कर सकेगा। सो आई थिंक जिन्होंने कर लिया था वो उन्होंने भी समझ लिया होगा, और जिन्होंने नहीं अभी तक अटेम्प्ट किया था उनको भी होपफुली समझ आ गई होगी। Okay, so the book you are basically um, watching on the screen right now, this is also available in printed form. You can get it. It contains huge amount of practice relevant to each topic.
ओके, सो क्वेश्चन नंबर 22, इसको ट्राई करें जरा। जी, अच्छा, ये आपका नाम नहीं लिखा हुआ आ रहा। एक्सप्लेन द क्वेश्चन, जस्टिफिकेशन ऑफ डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री इन अ कंट्री। अच्छा, सही है। इसका क्या क्वेश्चन क्या था, इसकी तरफ मैं वापस जाता हूँ, देख लेते हैं इसको कि क्या क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी। ओके, सो आप लोग ये मेरा नंबर नोट कर लें, 0333442967 ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इमीडिएटली, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो, ज़ाहिर है हमारे पास टाइम काफ़ी शॉर्ट है, हम थोड़ा आगे निकल रहे होंगे, क्विकली निकल रहे होंगे, आप उसकी पिक्चर लेके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करते जा करें। कोई क्वेश्चन अगर जो पीछे रह जाए और हम डिस्कस किया हो या आपको समझ ना आई हो, दोबारा से हम। अच्छा, डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री का वैसे जनरली पूछ रहे हैं कि क्या मीनिंग है। डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री सनसेट इंडस्ट्री को कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं, उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर रही होती है, कंटिन्यूस फॉल कर रही होती है, उनके शट डाउन होने के चांसेस होते हैं, उनको डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं। ओके, सो आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने आंसर कर लिया क्वेश्चन नंबर 22 को। एन इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग एट एक्स, इनिशियली यहाँ पे प्रोड्यूस करें, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग वाई इंस्टेड ऑफ एक्स। इफ वी मूव फ्रॉम एक्स टू वाई, व्हाट विल बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, एट एक्स यू कैन सी वी आर प्रोड्यूसिंग 200 यूनिट्स ऑफ वाई। अगर हम एक्स से वाई की तरफ जा रहे हैं तो एक्स की प्रोडक्शन बढ़ रही है, यानी मशीन्स की प्रोडक्शन बढ़ रही है, फूड की प्रोडक्शन कम हो रही है। जिस चीज़ की प्रोडक्शन कम हो रही होगी वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। इट मीन्स के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आंसर में हमारे पास फूड होना चाहिए, मशीन्स नहीं होने चाहिए। ऑप्शन ए और सी को हम क्रॉस कर देते हैं, इसमें दो में फूड आ रहा है, तो फूड हम कितना सेक्रीफाइस करें। एक्स पे हमारे पास 200 प्रोडक्शन थी, वाई पे 150 प्रोडक्शन है, इट मीन 50 यूनिट्स ऑफ फूड हम सेक्रीफाइस करें, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर दिए। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, और जो नेक्स्ट टॉपिक अब हम डिस्कस करेंगे वो है इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम तीन तरह के होते हैं, फ्री मार्केट, प्लान और मिक्स्ड इकोनॉमीज। और ये काफ़ी लाइक सिंपल टॉपिक है। फ्री मार्केट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स की ओनरशिप में होती है, और प्लान इकोनॉमी गवर्नमेंट के अंडर होती है, और मिक्स्ड इकोनॉमी इज बेसिकली द टाइप ऑफ इकोनॉमी which is basically in which part of the resources are under government and part of the resources are under private sector. So free market प्राइवेट लोगों के पास, प्लान्ड इकोनॉमी गवर्नमेंट के पास, मिक्स में दोनों लोग इन्वॉल्व होते हैं। सो इस टॉपिक को आई बिलीव कि ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन क्विकली मूव टू द एमसीक्यूज। इसके फर्स्ट 3 एमसीक्यूज ज़रा ट्राई करें। 7 क्वेश्चन के आपने लाजमी तौर पे लिखना है कि किस क्वेश्चन का आप आंसर करें। जी, ओके, Ilaf, Wasim and Taha। ओके, सो बिल्कुल सही है, आप लोगों के आंसर्स बिल्कुल आ रहे हैं। जी, जिब्रील एंड मनाल, सेवंसी एंड टूबी। ओके, so keep writing answers which you think are correct options in your point of view। ठीक है, Ilaf, Wasim।
Okay, so this is a simple topic, so we can quickly move to the other topic after discussing it. And question number 1 says, which of the following is the advantage of free market economic system? So it gives incentive to produce. This is the correct option. Option C is correct answer. Because in free market economy, what people do is basically they produce goods and services for incentive of earning profit. Question number 2 is, why did planned economies often experience long queues for consumer goods? लॉन्ग क्यूज क्यों होती हैं? लॉन्ग क्यूज मतलब लंबी लंबी लाइंस में लोगों को क्यों लगना पड़ता है? बिकॉज गवर्नमेंट सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स जो है दैट इज नॉट एफिशिएंट, सो इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस की वजह से लॉन्ग क्यूज में लोगों को खड़ा होना पड़ता है. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3 इज, विच एक्शन इज एविडेंस दैट अ कंट्री इज अ प्लान्ड इकोनॉमी? प्लान्ड इकोनॉमी वो होती है जो गवर्नमेंट के अंडर हो. सो गवर्नमेंट प्लान्स allocation of all resources, so B is correct answer. Okay, so we are basically moving to our next topic. This was really simple topic और इसमें से questions भी बहुत ज़्यादा नहीं आते, maximum एक question आ जाता है. तो now moving to the next question that is relevant to market failure. Okay, so market failure क्यों होता है? Market failure का meaning क्या है? और market failure से relevant क्या कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए? सो वी कैन बेसिकली डिस्कस देम क्विकली. इसमें स्पेशली जो फार्मूले हैं वो आपको याद रखने होंगे, वो लिख लें आप लोग. और मार्केट फेलियर तब होती है जब मार्केट इज नॉट इन द पोजीशन टू प्रोड्यूस सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. Market is not able to produce sufficient quantity of goods and services to satisfy the needs and wants of the society. और यानी डिमांड अगर ज़्यादा है सप्लाई कम है, या फिर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है, तो दोनों केसेस में मार्केट फेलियर अकर होता है. और इस टॉपिक से रेलेवेंट जो इस टॉपिक से रेलेवेंट जो मेन कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, दोज इंक्लूड लाइक प्राइवेट कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट. एक्सटर्नल कॉस्ट को नेगेटिव एक्सटर्नलिटी भी कहते हैं, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी. अच्छा, हमारे पास टाइम कम है, चैलेंज थोड़ा लंबा है. जी, देन इज सोशल कॉस्ट. सोशल कॉस्ट इज द सम ऑफ प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट. जी, प्राइवेट कॉस्ट इज द कॉस्ट टू द प्रोड्यूसर और कंज्यूमर. लाइक जितने भी प्रोड्यूसर्स चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए कॉस्ट पे कर रहे होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस पे कर रहे होते हैं, वो सारी प्राइवेट कॉस्ट होती हैं. एक्सटर्नल कॉस्ट थर्ड पार्टी की कॉस्ट है, लाइक जैसे पोल्यूशन होगी. और जनरली जो मोनोपोली फर्म्स हैं वो मार्केट फेलियर को कॉज करती है. मोनोपोली का मतलब है सिंगल फर्म दैट डोमिनेट्स इंटायर इंडस्ट्री, और ये भी पोल्यूशन को कॉज करती है और अंडर प्रोडक्शन को कॉज करती है, ओवर चार्जिंग को कॉज करती है. एंड private cost is cost to the producer or consumer, and social cost is the total cost of producer, consumer and third party, that is private cost plus external cost. इसी तरह से आपको प्राइवेट बेनिफिट्स का पता होना चाहिए. These are benefit to the producer or consumer for producing and consuming goods and services. एक्सटर्नल बेनिफिट जिसको हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी भी कहते हैं, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी. और जैसे प्लांटेशन और वैक्सीनेशन और एजुकेशन, ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सटर्नल बेनिफिट्स क्रिएट करती हैं. देन इज सोशल बेनिफिट. सोशल बेनिफिट आर बेसिकली प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट. ओके, सो ये मेन इंफॉर्मेशन है जो आपको याद होनी चाहिए. और इससे रेलेवेंट डायरेक्टली हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ. जी, देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर इसमें से पूछ रहा होता है. जी, just give me a few seconds to open new file. जी, ओके. सो अच्छा, अगर आप लोग ये समझते हैं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट सारे अच्छे तरीके से आते हैं जो हम अभी डिस्कस करें,
तो हम डायरेक्टली मूव कर जाएंगे एक फुल फ्लेज एग्जाम पेपर की तरफ, जिसमें हम एक पूरा पेपर भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सो ओके, सो फिलहाल आप देखें ये 3 क्वेश्चंस आपको अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। इसी टॉपिक से रेलेवेंट हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप चैट में लिख सकते हैं, क्योंकि आवाज़ आपकी यहाँ पे अनम्यूट होना पॉसिबल नहीं होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4। ओके जी, ठीक है। मनाल जबरील, इलफ बिनते फैसल। ओके, ठीक हो गया। इनको भी क्विकली हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक हो गया बेटा। नाहिल जी, so external benefits are, so you can basically write the formula of social benefit. Social benefit is equal to private benefit plus external benefit, plus external benefit. So examiner is asking question about external benefit. So for finding external benefit, तो आप external benefit को subject बना लें, and you can move private benefit to the other side. So social benefit minus private, इसको जब हम equation किस तरफ ले आएंगे तो minus private benefit हो जाएगा. So external benefit is equal to social benefit minus private benefit. So C option is correct. जी. Okay, tax on which of the following would most reduce external cost? किस चीज पे टैक्स लगाएं तो आपके पास external cost यानी पोल्यूशन कम होगी? कार्स पे अगर हम टैक्स लगाते हैं तो इससे पोल्यूशन कम होगी, क्योंकि कार्स की वजह से ज़्यादा पोल्यूशन कॉज होती है। सिंस एक कार पे अगर आपने ट्रैवल करना है तो मैक्सिमम 4 से 5 लोग ट्रैवल कर सकते हैं, और इसलिए अगर कार्स पे हम टैक्स लगाएंगे तो कार ड्राइवर्स कम आएंगे, तो डेफिनेटली उससे एक्सटर्नल कॉस्ट हमारी कम हो जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ इज द सोशल बेनिफिट ऑफ एन एक्टिविटी कैलकुलेटेड? ओके, सो सोशल बेनिफिट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? प्राइवेट बेनिफिट प्लस एक्सटर्नल बेनिफिट, या फिर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी से हम कहते हैं एक्सटर्नल बेनिफिट। अनदर नेम फॉर एक्सटर्नल बेनिफिट इज पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी. So private benefit plus positive externality is social benefit. Okay, so I believe कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ओके, बिन थे फैसल बिल्कुल सही है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आपको इशू आ रहा है। क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि किस चीज़ पे टैक्स लगाएं तो आपके पास पोल्यूशन कंट्रोल होगी। एक्सटर्नल कॉस्ट इज बेसिकली काइंड ऑफ पोल्यूशन, नेगेटिव एक्सटर्नलिटी जो इन्वायरमेंट को डैमेज कर रही होती है। आप देखें बाइसिकल्स तो बेचारी वैसे किसी किस्म का पोल्यूशन नहीं कॉज करती। बस फेयर्स पे अगर लगाएंगे तो बस तो बड़ी अच्छी चीज़ है। बस तो लाइक ट्रैवल, इफ़ वी ट्रैवल बाय बस इट मीन्स कि एक बस आपके 40-45 लोगों को कैरी करी होती है, तो इट मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा लोग उसमें अकोमोडेट हो रहे हैं। और अगर 40 लोग आपको कार्स के थ्रू कवर करने हैं तो 40 लोगों के लिए 10 कार्स चलेंगी रोड पे, तब जाके 40 लोग ट्रैवल कर पाएंगे। और इसी तरह से फेरी का भी यही है कि इस पे भी आपके बहुत ज़्यादा लोग ट्रैवल कर सकते हैं। इस पे अगर टैक्स लगाएंगे तो उसका भी इतना फ़ायदा नहीं होगा, ज़्यादा फ़ायदा होगा अगर आप कार्स पे टैक्स लगाएं, ताकि कम से कम लोग कार्स पे निकलें बाहर, ज़्यादा लोग बसेस यूज़ करें, बाइसिकल्स यूज़ करें और फेरीज यूज़ करें, तो उससे पोल्यूशन कंट्रोल होगी। बिनते फैसल, होप इट इज़ क्लियर नाउ। ओके, इफ देयर इज एनी इशू स्टिल देन वी कैन डिस्कस इट अगेन। Hope it's clear. Okay, so now we are uh, moving to our next topic, and the next topic we can discuss now is
very petty and small topic, that is public and private expenditure. Public in economics, public mean government expenditure, and private mean expenditure by individuals and companies, private individuals and companies. So इसके भी डायरेक्टली हम क्वेश्चंस की तरफ मूव कर जाते हैं. जी, इसके भी क्वेश्चंस की तरफ मूव कर जाते हैं. इकोनॉमिक्स में आप काफ़ी बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है. लफ्ज़ पब्लिक लिखा आता है तो वो उसको जनरल पब्लिक समझ लेते हैं, बट पब्लिक मीन गवर्नमेंट. क्लियरली ज़हन में रख लें. एक होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एक होता है जस्ट लव्स पब्लिक. सो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज प्राइवेट कंपनीज होती हैं, और पब्लिक मीन गवर्नमेंट. ठीक है. ओके, सो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे हम आगे जाके. अभी फिलहाल देख लें कौन से, इन 3 क्वेश्चंस को देख लें, इनमें से कौन से एक्सपेंडिचर पब्लिक एक्सपेंडिचर है और कौन से प्राइवेट एक्सपेंडिचर है. Okay, so it is showing, screen is showing now. जी, ओके. सो 1B कह रहे हैं आप. चलें, इसको मैं अभी यहाँ पे टिक कर लेता हूँ. ओके, सो 2 is D. अच्छा, ये कह रहे हैं आपके 2 का D आंसर होना चाहिए, और 2 का B ऑप्शन भी आप लोग बता रहे हैं. मनाल इज सेइंग कि 2 का B होना चाहिए. चलें, 2 ऑप्शंस आप लोग बता रहे हैं यहाँ पे. ओके, सो 3 का A ऑप्शन सामने है ये आप लोगों की तरफ से. चलें, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आपके पास सही ऑप्शंस असल में क्या है. क्वेश्चन नंबर 1. ऑन हॉलीडे आइलैंड क्रिमिनल्स हैव फ्राइटेंड अवे टूरिस्ट. टू गिव टूरिस्ट कॉन्फिडेंस द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड नंबर ऑफ पुलिस. सो इससे क्या होगा? पब्लिक एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज. बी ऑप्शन इज बिल्कुल परफेक्ट. और क्योंकि पुलिस सर्विस पे जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, दैट इज बेसिकली एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, सो पब्लिक एक्सपेंडिचर विल राइज. यहाँ पे एग्जामिनर मतलब पब्लिक से मुराद गवर्नमेंट को लेता है. Why may it be better to increase public expenditure while reducing private expenditure? Okay. जो ऑप्शंस आपने बताए इनको हम पहले देख लेते हैं. द गवर्नमेंट इज द बेस्ट जज ऑफ द सेटिस्फेक्शन गेन फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज. अच्छा, ओके. एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर लाइकली टू बी मोर केयरफुल spending money than private individuals. Okay. Goods and services which the market ignores can be provided. So option A is correct answer for this question. जी, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं होती तो प्राइवेट सेक्टर नहीं बनाता.
लेकिन गवर्नमेंट चूंकि सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही होती है तो उन प्रोडक्ट्स को गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन पब्लिक एक्सपेंडिचर? कैपिटल स्पेंडिंग बाय पब्लिक कंपनीज, बिल्कुल सही ऑप्शन है। दिस इज नॉट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ऑल अदर एक्सपेंडिचर्स आर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ पे क्लियरली गवर्नमेंट का उसने लफ्ज यूज किया, यहाँ पे भी यूज किया, यहाँ पे गवर्नमेंट की जगह नेशनलाइज फर्म यूज किया। नेशनलाइज फर्म्स भी गवर्नमेंट के अंडर होती हैं। जी, अच्छा, ये आपका नाम गेयो कुछ लिखा हुआ है, आप चैट में लिख दें बेटा जो आपको क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं जी। ओके, सो पब्लिक, यहाँ पे पब्लिक कंपनी से मुराद है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती हैं, वो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट के अंडर नहीं होती। जी, अगर आप क्वेश्चन स्टिल यू हैव क्वेश्चन यू कैन राइट इन चैट, तो उसको हम आंसर कर लेते हैं। चलो जी, ओके, सो चलें, आपका क्वेश्चन जब तक आता है तब तक हम मूव कर जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ। ओके सर, प्लीज रिवाइज मी द टॉपिक ऑफ प्रोडक्शन एंड, ओके ठीक है, उसकी तरफ भी हम आ रहे हैं। कैन यू एक्सप्लेन सेकंड वन प्लीज? ओके, अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। व्हाई मे इट बी बेटर टू इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर while reducing प्राइवेट एक्सपेंडिचर? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको लाइक इग्नोर नहीं किया जा सकता। गुड्स एंड सर्विसेज विच द मार्केट इग्नोर्स कैन बी प्रोवाइडेड। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इसलिए बढ़ाने की ज़रूरत होती है क्योंकि मार्केट उसको इग्नोर कर रही होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लाइक जैसे पब्लिक एंड मेरिट गुड्स होगी, तो ऐसी चीज़ें हैं जो फ्री मार्केट इकोनॉमी जनरली प्रोड्यूस नहीं करती बिकॉज दे आर नॉट प्रॉफिटेबल फॉर देम, सो गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोड्यूस देम। जी, ओके, सो चले, हमारे पास असल में टाइम की काफ़ी शॉर्टेज है, थोड़ा सा मैं हरी में इस वजह से भी हूँ, वरना हम डिटेल से इसको बिल्कुल देख रहे होते। और लेकिन आई सजेस्ट कि अगर आप डिटेल से चीज़ों को देखना चाह रहे हैं तो यू कैन सर्च मी ऑन यूट्यूब विद माय नेम कमल बलोच, आपको हर टॉपिक से रेलेवेंट डिटेल चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, सो now moving to the next topic, and the next topic is relevant to trade unions. Trade unions के बारे में कुछ बताएंगे आप लोग? आइडिया है आप लोगों को? बस यस या नो लिख दें। ट्रेड यूनियंस के बारे में आपको आइडिया है? बस सिर्फ चैट में आप लिखते हैं यस या फिर नो, और इसको हम फिर डिस्कस कर लेते हैं इंशाल्लाह। इसके डायरेक्टली फिर हम एमसीक्यूज की तरफ चले जाएंगे। ओके, सो ठीक है, सो ट्रेड यूनियंस बेसिकली होती क्या हैं? ट्रेड यूनियंस वर्कर्स की एसोसिएशंस होती हैं। ट्रेड यूनियंस को अगर हम डिफाइन करें तो ट्रेड यूनियन इज एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स विच बेसिकली वर्क्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इट्स मेंबर वर्कर्स। ठीक है, सो ट्रेड यूनियन का काम क्या होता है फिर? ट्रेड यूनियन का काम ये होता है कि ये अपने वर्कर्स, जितने भी मेंबर वर्कर्स हैं, उनकी सैलरीज के बारे में, सैलरीज या वेजेस के बारे में, उनकी वर्किंग कंडीशंस के बारे में, उनकी जो प्रमोशंस के बारे में, या फिर उनकी जो जितने भी बेनिफिट्स हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स हैं, लाइक अकोमोडेशन, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, health concerns of workers, everything that is basically settled or negotiated by the trade union with private employers as well as with the government. So employers एंड गवर्नमेंट के साथ ये लोग क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं, उनके साथ निगोशिएट करते हैं कि वर्किंग आवर्स क्या होने चाहिए, वर्किंग कंडीशंस क्या होने चाहिए। इस तरह के जो वर्कर्स से रिलेटेड जितने भी कंसर्न्स होते हैं, ये ट्रेड यूनियन उनके साथ डिस्कस कर रही होती है और सेटल करवा रही होती है। और ये ट्रेड यूनियन हर दफ़ा अपने वेजेस इंक्रीज करवाने में सक्सेसफुल नहीं होते। ये जनरली स्ट्राइक्स करके अपनी जो डिमांड्स हैं वो पूरी करवाते हैं, लेकिन हर दफ़ा ये सक्सेसफुल नहीं होते। इनकी जो सक्सेस है दैट डिपेंड्स कि बिजनेस प्रॉफिट क्या कमा रहे हैं
और बिजनेस की अपनी फाइनेंशियल वर्थ क्या है और बिजनेस कितना स्टेबल है। अगर एक बिजनेस इतना स्टेबल ही नहीं है, लॉसेस में जा रहा है, तो ऐसे बिजनेस से आप लोग हाई प्रॉफिट्स नहीं ले सकते, मतलब अपने वेज राइज नहीं करवा सकते। तो फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को ज़रा क्विकली आप लोग देख लें और फिर हम इंशाल्लाह मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा ठीक है बेटा, वी विल मूव क्विकली टू द कॉस्ट। नेक्स्ट वी कैन डू नेक्स्ट टॉपिक रेलेवेंट टू कॉस्ट। जी ओके, सही है, आप लोगों के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। बस ये चारों क्वेश्चन ज़रा एक दफ़ा पढ़ लें अच्छे से। आई थिंक ये वाला टॉपिक करने के बाद हम कॉस्ट को, जैसे एक स्टूडेंट काफ़ी कॉस्ट के लिए कह रहे हैं, कॉस्ट को हम डिस्कस करके फिर हम एक पूरा फुल फ्लेज पेपर देख लेते हैं, ताकि जो हमारा आखिरी घंटा है वो अच्छे से गुजर भी जाए और आपको पूरे सिलेबस की हर चीज़ समझ भी आ जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि टॉपिकली मुझे नहीं लगता कि वी विल बी एबल टू डू एवरीथिंग ड्यूरिंग दिस टाइम। ओके, सो
Okay, so you have basically given your answers here. Okay, so we can discuss them. I have marked correct answers for question number 1. A is correct answer. You can see if you basically gave this answer or not. और इसकी रीज़न क्या है कि in what circumstances trade union is most likely to be effective in wage negotiation for the member. So वेज negotiation में ये ज़्यादा इफेक्टिव तब होंगे जब इकोनॉमिक बूम चल रहा होता है, मीन इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं. जब बिजनेस ज़्यादा हाई प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे तो डेफिनेटली फिर ट्रेड यूनियंस भी सक्सेसफुली अपने वेजेस हाई करवा लेंगे. Question number 2 is which trade union action is most likely to have harmful effects on productivity of labor? So C answer is correct. And उसके अलावा इसका डी आंसर है. अगर ये ऑप्शंस आपके सही हैं जो आप चूज कर रहे थे तो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई ऑप्शन आप कुछ और सोच रहे थे तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं. Okay, so now we can move to the next topic, that is cost of production. और इससे रेलेवेंट मेनली जो आपको चीज़ें जहन में रखनी है वो इनके फार्मूले हैं. ठीक है, क्वेश्चंस अगर आपको फार्मूले जहन में होंगे तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना काफ़ी आपके लिए आसान होगा. सो कॉस्ट के अंदर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं उनमें सबसे पहले है फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट वो होती है जो आउटपुट के बढ़ने के साथ नहीं बढ़ती, आउटपुट के कम होने से कम नहीं होती, सेम रहती है. जितना मर्जी आउटपुट हो आपकी फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है. और इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं, लाइक रेंट ऑफ द बिल्डिंग, इंश्योरेंस कॉस्ट, या फिर इसी तरह से सैलरीज ऑफ परमानेंट स्टाफ. ये हमारे पास फिक्स कॉस्ट होती हैं. फिक्स कॉस्ट का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो इस तरह से हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है. दिस इज क्वांटिटी और आउटपुट एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव कॉस्ट. दिस इज $100. दिस इज ओरिजिन पॉइंट. यानी फिक्स कॉस्ट वो है जो आउटपुट, जीरो आउटपुट पे भी हमें हमें देनी पड़ती है. अच्छा, एग्जामिनर कई दफ़ा आपको इस तरह से ऑप्शन दे देता है, क्वांटिटी और टोटल कॉस्ट दे देगा. ज़ीरो आउटपुट टोटल कॉस्ट 100, 10 आउटपुट टोटल कॉस्ट 120, 20 आउटपुट टोटल कॉस्ट 140. सो आप में से कोई बता सकता है कि इसमें से फिक्स कॉस्ट निकालनी हो तो कितनी होगी, इस टेबल में से फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? कोई बता सकता है ज़रा क्विकली मुझे? बिल्कुल सही है बेनते फैसल, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सब लोग सही कह रहे हैं. फिक्स कॉस्ट वो होती है जो जीरो आउटपुट पे भी हम पे कर रहे होते हैं. ओके, सो इसका इसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता. वेरिएबल, उसके बाद एवरेज फिक्स कॉस्ट. एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. और एवरेज फिक्स कॉस्ट की नेचर ये होती है कि ये हमेशा आउटपुट बढ़ने के साथ कम होगी. लाइक क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती जाएगी. इसकी लॉजिक भी मैं समझा देता हूँ कि क्यों ऐसा होगा. अगर इस फॉर्मूला पे फोकस करें, आपके पास न्यूमरेटर फिक्स कॉस्ट है, डिनोमिनेटर क्वांटिटी है. न्यूमरेटर तो चेंज ही नहीं होगा. फिक्स कॉस्ट जैसे हम कह रहे हैं 100 है तो 100 ही रहेगी, हर आउटपुट पे 100 रहेगी. सो इट मीन कि डिनोमिनेटर अगर बढ़ाते जाएंगे तो आंसर इसका कम होता जाएगा. सो एवरेज फिक्स कॉस्ट का आंसर छोटा होता जाएगा. देन इज वेरिएबल कॉस्ट. ये वो कॉस्ट है जो आउटपुट के साथ चेंज होती है, जैसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी, जैसे नॉन परमानेंट स्टाफ के वेजेस हो गए. ये इस तरह की कॉस्ट हैं जो आउटपुट के साथ चेंज होती हैं. और वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ बनाएं तो वो इस तरह से होता है, लाइक जीरो से स्टार्ट होगा, दिस इज क्वांटिटी, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट, ऑन वाई एक्सिस वी हैव कॉस्ट. अब आपके पास जीरो से पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा. अगर आप आउटपुट बढ़ाते जा रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है. लाइक जितना आउटपुट ज़्यादा बनाएंगे आपको उतने ज़्यादा रॉ मटेरियल के लिए पे करना पड़ेगा, वेजेस के लिए पे करना पड़ेगा. और इसी तरह से फिर हमारे पास आ जाती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. इसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. देन इज टोटल कॉस्ट, दैट इज सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, सो टोटल कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. देन इज एवरेज टोटल कॉस्ट. एवरेज टोटल कॉस्ट को एग्जामिनर जस्ट एवरेज कॉस्ट भी बोलता है तो कंफ्यूज नहीं होना. दिस इज टोटल कॉस्ट ओवर क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. ठीक है, और अगर इसके ट्रांसलेशंस फर्दर देखें तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. यानी इसको मैंने फिक्स टोटल कॉस्ट को इस तरह से ट्रांसलेट करके लिख दिया है तो एग्जैक्टली सेम मीनिंग है.
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फिक्स कॉस्ट ओवर क्वांटिटी प्लस वेरिएबल कॉस्ट ओवर क्वांटिटी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फिक्स कॉस्ट ओवर क्वांटिटी हम ऊपर लिख चुके हैं कि इट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट, सो इसको आप एएफ से लिख सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट ओवर क्वांटिटी को हम ऊपर लिख चुके हैं, वेरिएबल कॉस्ट ओवर क्वांटिटीज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सो इसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट लिख सकते हैं। सो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, टोटल कॉस्ट का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो टोटल कॉस्ट का ग्राफ ओरिजिन से ऊपर स्टार्ट होगा, यानी फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट होगा और इस तरह से पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा। दिस इज टोटल कॉस्ट। ऑन एक्स वी हैव आउटपुट और क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, ऑन वाई एक्सिस वी हैव कॉस्ट। ओके, सो ये टोटल कॉस्ट की नेचर ये होती है। आप अगर इसी सेम ग्राफ के अंदर मैं साथ में वेरिएबल कॉस्ट की भी लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो वो वेरिएबल कॉस्ट की लाइन इसके बिल्कुल पैरेलल इस तरह से जारी होगी, और फिक्स कॉस्ट की लाइन ड्रॉ करना चाहूँ तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास इस तरह से हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी। अच्छा, अब एग्जामिनर कई दफ़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको यहाँ पे कोई लेवल ऑफ आउटपुट दे देगा। फॉर एग्जांपल इसके क्वेश्चंस आप करेंगे तो और आसानी से समझ आ जाएगी। अगर आउटपुट एग्जामिनर यहाँ पे दे देते हैं, लेट्स से वो कहते हैं कि हमारे पास 50 यूनिट्स ऑफ आउटपुट है तो इस पे वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी। एग्जामिनर यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट ऐसे आइडेंटिफाई कर देते हैं, लेट्स से कि वो कहते हैं 150, और टोटल कॉस्ट आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई कर देते हैं, लेट्स से कि हमारे पास यहाँ पे 170 है। ओके, सो 150 और यहाँ पे 250 कर दें इसको, सॉरी 250 कर दें, टेक्निकली ज़रा सही हो जाएगा। सो ये जो गैप है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, ये वाला गैप किस चीज़ को शो करता है, एग्जामिनर इसका भी पूछ लेता है। ए से बी गैप जो है, ए से बी गैप, ये भी फिक्स कॉस्ट है। जैसे कि यहाँ पे हम अगर देखें तो टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के दरमियान का ये वाला जो गैप है, ये $100, ये फिक्स कॉस्ट है। इसी तरह से टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के दरमियान में ये वाला जो गैप है, जिसको अभी मैं थोड़ा थिक कर रहा हूँ, ये भी गैप, ये भी उतना ही है जितना ये था, तो ये भी फिक्स कॉस्ट होती है। तो ये भी टेक्निकली आपको ज़हन में रखना होगा। अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ, तो थोड़ा सा आपको इसमें टेक्निकली अप्लाई करना आ जाएगा कि किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। और फिर इसी टॉपिक से रेलेवेंट वो आपसे रेवेन्यू और प्रॉफिट का फॉर्मूला भी पूछ लेता है। रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या होता है? रेवेन्यू इज बेसिकली प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड। सो टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी सोल्ड। और प्रॉफिट का फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। प्रॉफिट होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। लॉस का भी फॉर्मूला यही होगा, लेकिन लॉस के केस में क्या होगा, आंसर आपके पास नेगेटिव आ रहा होगा, यानी कॉस्ट ज़्यादा होगी, रेवेन्यू कम होगा। प्रॉफिट के केस में रेवेन्यू ज़्यादा और कॉस्ट कम होगी। एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट या फिर ब्रेक इवन पॉइंट उसे कहते हैं। ब्रेक इवन क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट इज अ सिनेरियो व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। और इसका भी रेवेन्यू और कॉस्ट का अगर ग्राफ बनाएं तो टोटल रेवेन्यू का ग्राफ ऐसे ओरिजिन से स्टार्ट होता है, यानी क्वांटिटी, जब आपकी क्वांटिटी सोल्ड आपकी ज़ीरो होगी तो रेवेन्यू भी डेफिनेटली ज़ीरो होगा। और टोटल कॉस्ट की जो लाइन है वो अगर हम ड्रॉ करें तो वो ऐसे फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट होती है। दिस इज टोटल कॉस्ट। अब ये जो एरिया है जिसको अभी मैं शेड कर रहा हूँ, ये बेसिकली शो करता है लॉस को। लॉस इसलिए क्योंकि ब्लू लाइन यानी कॉस्ट जो है ज़्यादा है, येलो लाइन यानी रेवेन्यू कम है। इस पॉइंट पे इसको हम टेक्निकली तो वैसे नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग ओ लेवल्स में आप इसको ब्रेक इवन कह सकते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। ए लेवल्स में जाके थोड़ा ये कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। ये एरिया फिर अगेन आपके पास लॉस लॉस है, सॉरी ये एरिया आपके पास सॉरी प्रॉफिट है, क्योंकि इस केस में आपकी रेवेन्यू की लाइन ऊपर है और कॉस्ट की लाइन नीचे। सो रेवेन्यू ज़्यादा होगा, कॉस्ट कम होगी, तो ये प्रॉफिट होगा। यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा थी, रेवेन्यू कम है, तो लॉस है। और जब दोनों इक्वल हैं तो इसको आप ब्रेक इवन कह सकते हैं। ओके, सो इससे रेलेवेंट डायरेक्टली हम क्वेश्चंस देख लेते हैं कि एग्जामिनर क्या क्वेश्चंस पूछ रहा होता है और उनको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, टैकल कैसे कर सकते हैं। सो यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 1, और इसका मुझे ज़रा बताइए, इसमें एग्जामिनर ने जैसे चीज़ों को लेबल नहीं किया हुआ पूरा, तो आप इसको थोड़ा सा सोच के बताएं क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 अभी फ़िलहाल ट्राई करें।
ओके, जिब्रील सेज के 50,000। ओके, सो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इनकी इस ग्राफ को लेबल करना होगा ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। अगर मैं वापस जाऊं उसकी तरफ, स्क्रीन की तरफ, जो मैंने अभी आपको टॉपिक समझाया था क्विकली, इसमें अगर हम लेबलिंग देखें तो जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम फिक्स कॉस्ट कहते हैं। जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही होती है इसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। जो ओरिजिन से ऊपर स्टार्ट हो रही है उसको हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। सो इट मीन्स कि यही वाली लेबलिंग हम इस ग्राफ में पहले कर लें तो हमारे लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। एग्जामिनर ने ये चीज़ हमारे लिए छोड़ दी, फिक्स कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट और ये टोटल कॉस्ट हो जाएगी। नाउ द एग्जामिनर इज आस्किंग के व्हाट इज फर्म्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट आउटपुट 100। आउटपुट 100 आपके पास ये, यहाँ से आप सिंपली क्या करें, आप वेरिएबल कॉस्ट की लाइन तक चले जाएं। यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट को ये टच करिए, वहां से देख लें आपके पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी। सो ये 50 है, ऑल फिगर्स आर इन थाउजेंड्स, सो वी कैन से इट्स 50,000। ठीक है, सो दिस इज द वे यू कैन बेसिकली फाइंड आउट। अगर इसी आउटपुट पे वो आपसे टोटल कॉस्ट पूछता तो आप थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ देख लेते कि टोटल कॉस्ट 60,000 है। अगर फिक्स कॉस्ट पूछता तो आपके पास फिक्स कॉस्ट एक तो यहाँ पे आपके पास 10,000 आ रही है, दूसरा ये जो गैप है 50 और 60,000 का ये भी 10,000 है। सो फिक्स कॉस्ट आपके पास 10,000 होती है। सो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉफिट का एक क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन नंबर 2 प्रॉफिट से रिलेटेड, कि मैक्सिमम प्रॉफिट, व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट गिव्स मैक्सिमम प्रॉफिट। जी, क्वेश्चन नंबर 4 को जरा करें ट्राई। क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लें, 4 एंड 5 दोनों कर लें। जी ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 का सी और 5 का ए आप लोगों को लग रहा है, तो इसको बिल्कुल देख लेते हैं 4 का सी आंसर सही है कि नहीं। द टेबल शोज द फर्म्स टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। दिस इज टोटल रेवेन्यू एंड दिस इज टोटल कॉस्ट। मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी जैसे बताया था, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। सो ये रेवेन्यू है 20 और टोटल कॉस्ट 14, तो 6 आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। 25 माइनस 7, ये कितना बनता है, 8 प्रॉफिट हो जाएगा। 30 माइनस 21, 9 प्रॉफिट हो जाएगा। 35 माइनस 27, ये भी आपके पास कितना हो जाएगा, 3 और 5, 8 हो जाएगा। सो इट मीन मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 30 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पे। सी बिल्कुल आप लोग सही कह रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 इज द टेबल shows the cost incurred by a firm producing computers
ओके सो व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट एट 3000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। फिक्स कॉस्ट चाहे 3000 बना रहे हो, चाहे 1000 बना रहे हो, चाहे 0 बना रहे हो, वही होती है, सेम होती है जो जीरो आउटपुट पे होती है। लाइक जीरो आउटपुट पे आपके पास फिक्स कॉस्ट 20 है तो 20,000 ही रहेगी। ठीक है, चाहे जितना मर्जी आप रिड्यूस कर लें। सो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आ, हम्म अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 का अब आपको समझ आ गई कि नहीं? ठीक है, चलें, गुड हो गया। ओके सो इससे रेलेवेंट फिर बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, ये वाला एक बस क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन नंबर 9। जी, अगेन एग्जामिनर ने कुछ चीज़ें हाइड कर दी हैं, लाइक आपको अगेन वो लेबलिंग नहीं करके दे रहा। जी, ट्राई करें इसको ज़रा, क्वेश्चन नंबर 9 को, और इसके बाद हम एक फुल फ्लेज पेपर की तरफ मूव कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। जी, ओके सो यू हैव टू फाइंड आउट फिक्स कॉस्ट। ठीक है, ये आपके पास फिक्स कॉस्ट की लाइन होती है, ये आपके पास वेरिएबल कॉस्ट की लाइन होती है, और ये टोटल कॉस्ट की लाइन होती है। अच्छा, आप लोगों ने बताया कि 9 का ए आंसर है, और ठीक है, सब लोग 9 ए बोल रहे हैं। पी क्यू बिल्कुल ये सही है, ये फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट इज द गैप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। वो गैप आप चाहे यहाँ पे देख लें, ये भी फिक्स कॉस्ट है। एग्जामिनर ये भी पूछ सकते हैं, आर से एस तक ये भी फिक्स कॉस्ट है। इसको लेट से पॉइंट ए का नाम दे दें, ओ ए भी फिक्स कॉस्ट है, आर एस भी फिक्स कॉस्ट है, पी क्यू भी फिक्स कॉस्ट है। सो ये चीज़ आप जेन में रखें। ओके सो इसको हम अभी फिर टॉपिकल को हम यहीं पे रोक देते हैं, और इसके फ़ौरन बाद जो है हम मूव कर जाते हैं, फुल फ्लेज हम एग्ज़ाम पेपर देख लेते हैं ताकि इफेक्टिवली उसको देख लें। उससे कनेक्टेड जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो भी मैं आपके साथ हैंड इन हैंड डिस्कस करता जाऊंगा। तो इस तरह ज़रा अच्छे से एक फुल फ्लेज आपका एग्जाम पेपर हो जाएगा। तो आप खुद भी इवैल्यूएशन अपने साथ साथ करते जाइएगा, आप अपने पास आंसर्स नोट करते जाएं। एट द एंड आप देख लें कि आपके कितने आंसर्स थे जो सही थे, और आपको लाइक ए ग्रेड पे पहुंचने के लिए फर्दर कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही होने चाहिए। अराउंड 23 पे ए होता है, तो आउट ऑफ 30 23 मार्क्स पे ए ग्रेड होता है, तो आपको आपके 23 आने चाहिए। जी, ओके सो आई एम शोइंग यू द रीसेंट मोस्ट एग्जाम पेपर, दैट इज नवंबर 2020। ओके सो दिस इज द एग्जाम पेपर। हम हमारा पैटर्न यही होगा, क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइम दूंगा। एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का टाइम मिलेगा, आप डिस्कस, आप मतलब सोच लें, आप अपने रजिस्टर पे उसको नोट करते जाएं कि आप क्या समझ रहे थे कि क्या आंसर होना चाहिए, और एट द एंड जब मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, आपने अपनी पर्सनल इवैल्यूएशन करनी है कि आपको वाकई में वो कॉन्सेप्ट जहन में था कि नहीं था। सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1, और दो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, दोनों आप कर लें बेशक।
लेकिन आप अपने पास आंसर नोट करते जाएं, एट द एंड आप उसको वेरीफाई कर लीजिए। अगर जो क्वेश्चन का आंसर सही आ रहा है उसको टिक लगाते जाएं, जो सही नहीं है उस पर आप क्रॉस लगाते जाएं, ताकि आपकी इवैल्यूएशन हो सके। जी, आप इधर भी आंसर में चैट में भी लिखते जाएं। जी ओके, सो आपकी ऑप्शंस, आप ऑप्शंस मैं बता देता हूँ, आंसर्स बता देता हूँ, आप इसको वेरीफाई करते जाएं, अपने पास टिक क्रॉस लगाते जाएं। सो व्हाट कॉजेज इकोनॉमिक एजेंट्स टू मेक चॉइसेस? इकोनॉमिक एजेंट से मुराद होता है कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, ये सारे इकोनॉमिक एजेंट्स हैं। उन्हें चॉइस क्यों करनी पड़ती है? बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ फिनाइट रिसोर्सेज। रिसोर्सेज चूंकि लिमिटेड होते हैं, इसलिए हम हर चीज़ तो नहीं कर सकते। वी हैव टू मेक चॉइसेस, एक चीज़ लेने के लिए दूसरी हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन एंड इट्स फैक्टर इनकम इज नॉट करेक्ट? अक्सर बच्चे इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, इसको मतलब जनरली स्किप कर देते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखते हैं, व्हाट इज़ करेक्ट या नॉट करेक्ट जो भी पूछ रहे हैं उसको आप फोकस करेंगे। सो ऑप्शन सी इसके लिए करेक्ट आंसर है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर का जो रिवॉर्ड होता है या इनकम होती है, उसको हम वेजेस एंड सैलरीज कहते हैं, उसको हम डिविडेंड नहीं कहते। सो ये गलत है, यानी ऑप्शन सी आंसर है हमारा। कैपिटल का रिवॉर्ड इंटरेस्ट होता है, बिल्कुल सही है। प्रॉफिट एंटरप्राइज का लैंड का रेंट होता है, ये सारे सही हैं, बस दिस इज नॉट करेक्ट, सो हम सी को चूज कर लेंगे। ओके, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, इसको क्विकली करें जरा। जी, टारगेट है हमारा, हमारी जो टाइम फ्रेम है उससे पहले पहले हम इसको फिनिश कर लें इंशाल्लाह। जी ओके, सही है। Question number 3 is the diagram shows a production possibility curve PPC for a country. The country moved from X to Y on PPC. G. Okay, so on X, production of capital was this much and production of consumer goods was this much. So this is X and this is Y for. अच्छा चलें, इसको हम x1 y1 कर देते हैं क्योंकि xy यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। ओके, सो इफ वी मूव टू y, तब क्या होगा? कैपिटल हमारे पास कम हो गया और कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा होगी। तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है? व्हाट इज़ मोस्ट लाइकली रीज़न? तो इसके लिए आंसर है गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट अबाउट एन इंक्रीज इन लिविंग स्टैंडर्ड। ओके, सो लिविंग स्टैंडर्ड का जो ताल्लुक है वो कंज्यूमर गुड्स के साथ होता है। जितनी कंजम्पशन आपकी बढ़ती जाती है उतनी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो बेहतर होती जाएगी। बाकी की ऑप्शन ठीक क्यों नहीं है उसको हम देख लेते हैं।
ओके, सो आप लोगों का होपफुली सही आंसर होगा, और अगर नहीं है तो और ऑप्शंस अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं कि क्यों सही नहीं है, ये ठीक है, समझ आ गई इसकी। क्योंकि कंज्यूमर गुड्स इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन जब भी बढ़ती है तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है करंटली। ओके, सो नाउ वी कैन मूव टू द अदर क्वेश्चन। इसका क्विकली मैं बता देता हूँ। फर्म्स हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी। अगर इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी बढ़े तो राइट वर्ड पीपीसी शिफ्ट होना चाहिए था। ठीक है, सो ये आपको ये चीज़ हो सकता है कि वो करिए, कंफ्यूज करिए। और दूसरा ये कि यहाँ पे अगर हम एक्स टू वाई मूव करें तो ये हमारे पास कैपिटल टेक्नोलॉजी चूंकि कैपिटल का पार्ट होता है तो वो भी हमें यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ये दो क्वेश्चन जरा कर लें क्विकली, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके जी, सो होपफुली यू आर डन विद क्वेश्चन 4 एंड 5। Question number 4 says, what is an example of macroeconomic aims? So macroeconomic aims to create and maintain full employment, ये macroeconomic issue होता है। बाकी सारे के सारे issues माइक्रो लेवल के हैं जो यहाँ पे डिस्कस हुए हुए हैं। शुरू में मैंने आपको टेबल ऑफ कंटेंट दिखाया था, उसमें आपको क्लियरली मैंने बताया था कि कौन सी चीज़ें माइक्रो में आती, कौन सी मैक्रो में आती। तो इस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। Question number 5 is, why might a market fail to achieve the best use of scarce resources? Okay, so इसमें हमारे पास consumers may lack information about which goods to buy। तो ये मार्केट फेलियर का सोर्स हो सकता है। मार्केट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी आपके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है कि कौन सी चीज़ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ आपके लिए हार्मफुल है। तो उस इस वजह से आप गलत चीज़ें बाय कर रहे होते हैं जो पोल्यूशन को कॉज कर रही होती हैं और हेल्थ कंसर्न्स को कॉज कर रही होती हैं। सो जब भी ऐसा होगा उसे हम मार्केट फेलियर का नाम देते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 को करें जरा। जी ओके, सो होप यू आर डन विद दिस क्वेश्चन। तो इसको मैं समझा देता हूँ, बाकी लोग भी देख लें जिन्होंने अभी तक नहीं किया। Diagram shows global market for copper with an equilibrium at X। ओके, सही है। मनाहिल माहम, सॉरी क्या नाम था? जी माहम शाह, ठीक है बेटा, देख लेते हैं इसको भी आंसर सही है कि नहीं।
सो इनिशियल इक्विलिब्रियम यहाँ पे x पे है, मीन आपका सप्लाई कर्व S1 है, डिमांड कर्व D1 है, क्योंकि ये दो ग्राफ्स हैं जो एक दूसरे को यहाँ पे कट करें। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वालिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को इस पॉइंट पे x पे कट करें। Okay, so which point represents the new equilibrium after the copper's producer's cost increase? Cost जब बढ़ती है, cost of production हमारा supply का factor है, यानी प्रोड्यूसर्स को चीज को प्रोड्यूस करने के लिए एक्सपेंस जो आ रहा है, जो कॉस्ट आ रही है, वो इंक्रीज हो जाती है। और अगर ऐसा होगा तो डेफिनेटली उनकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, सप्लाई डिक्रीज करेगी। सप्लाई जब डिक्रीज करती है तो कॉन्सेप्ट ये है कि सप्लाई कर्व लेफ्ट को मूव कर जाता है। सो नया सप्लाई कर्व आपके पास S2 हो जाएगा। आगे एग्जामिनर कह रहे हैं एंड देयर इज रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है लोगों की इनकम बढ़ रही है, ओवरऑल जीडीपी कंट्री का इंक्रीज हो रहा है, तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी जब बढ़ती है तो डिमांड इंक्रीज होती है। सो डिमांड कब आपका राइट को चला जाएगा, D3 हो जाएगा। अब आप देख लेंगे कि D3 और S2 यानी जो नए डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स हमने आइडेंटिफाई किए, वो एक दूसरे को कहाँ पे कट करते हैं, तो ये एक दूसरे को पॉइंट ए पे कट करें। सो ए आपके पास करेक्ट ऑप्शन होगी। आई बिलीव कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कंफ्यूजन है तो इस वीडियो की रिकॉर्डिंग भी आपको ग्रीन हॉल के यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, और आप वहाँ से दोबारा से ये जो मैंने एक्सप्लेन किया इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आप आए ज़रा। जी, इसके लिए फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने के लिए, होपफुली आप लोगों को याद होगा, नहीं है तो ये लिख लें। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, डेल्टा साइन बेसिकली चेंज को शो करता है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एक फॉर्मूला ये है, एक और फॉर्मूला भी है चेंज इन क्वांटिटी, यहाँ पे आप परसेंटेज का साइन हम यूज नहीं करें, सिंपल चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ओवर चेंज इन प्राइस इंटू P1 ओवर Q1 करें। P1 से मुराद है इनिशियल प्राइस, जैसे यहाँ पे इनिशियल प्राइस 10 है, Q1 से मुराद है इनिशियल क्वांटिटी 100 है। सो इन दोनों में से जो भी फॉर्मूला आप यूज करेंगे एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। आगे समझाने से पहले आप लोग जरा ट्राई कर लें, 1 मिनट लगा लें इस पर। जी ओके अयान, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, डी आंसर सही है। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं अटेम्प्ट किया वो देख लें कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। प्राइस इज बेसिकली इंक्रीजिंग फ्रॉम 10 to 12। जब प्राइस 10 थी तो क्वांटिटी सप्लाई आपके पास कितनी थी, 100 थी, सॉरी 100 थी। और जब प्राइस 12 हो जाती है तो क्वांटिटी सप्लाई आपके पास 140 हो जाती है। सो 100 से 140 तक जो इंक्रीज है दैट इज 40% इंक्रीज, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिख देंगे 40%, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई 40% है। 10 से 12 तक प्राइस में जो इंक्रीज है ये 20% बनता है। सो 20% पे इसको डिवाइड कर दें, और परसेंटेज को परसेंटेज से कैंसिल कर दें, जीरो को जीरो से कर दें, 4/2 इज इक्वल टू 2। सो 2 आंसर हमारे पास ऑप्शन डी में। अगर आप ये एब्सोल्यूट फिगर्स का फॉर्मूला यूज करते हैं तो फिर आपके पास चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई 100 से 140 तक 40 का चेंज है, चेंज इन प्राइस 10 से 2 तक 12 तक 2 का चेंज है। इनिशियल प्राइस आपके पास 10 थी, P1 का मतलब है शुरू की प्राइस, और Q1 का मतलब है शुरू की क्वांटिटी, शुरू की क्वांटिटी आपके पास 100 थी। ओके, सो ये जीरो कैंसिल कर दें, ये जीरो इसके साथ कैंसिल कर दें, 4/2 अगेन 2 आ रहा है। सो जो भी फार्मूला यूज करें एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। अगेन मैं अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ। अगर किसी को कंफ्यूजन है, अगेन यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ ग्रीन हॉल एकेडमी, ये वहाँ पे वीडियो मौजूद रहेगी। क्वेश्चन नंबर 8 करें ज़रा, 8 एंड 9 दोनों कर लें।
ओके जी, सो आप लोगों ने बिल्कुल इसको ट्राई कर लिया, देख लेते हैं इनको। ठीक है अयान, हम आपकी जो परेशानी है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच टास्क इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन बेसिकली वर्कर्स की एसोसिएशंस होती हैं जो अपनी यूनियन के लोगों को की प्रोटेक्शन के लिए होती हैं। सो deciding on the level of national wage, national minimum wage, this is not the function of trade union, ये गवर्नमेंट करती है। मिनिमम वेज जो है ये गवर्नमेंट सेट कर रही होती है, ये यूनियन बेसिकली अपने वर्कर्स के लिए सारा कुछ सेट कर रही होती है। सो दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ trade union. Question number 9 is what does not have an effect on the wage in a free market economy? ओके सो फ्री मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट रेगुलेशंस का कोई रोल नहीं होता। फ्री मार्केट इकोनॉमी जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था, इकोनॉमी अंडर प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज इज नोन एज फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती, तो बी ऑप्शन सही आंसर है इसका। ओके सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10 जी। क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप में से कोई क्विकली कर ले तो वो 11 के बारे में भी सोचना शुरू कर दें। जी ओके सो इसको के बारे में आपने डेफिनेटली कर लिया होगा। So the table shows how household spending changes with income. ये आपके पास इनकम है, ये स्पेंडिंग। स्पेंडिंग का मतलब है जो आप कंजम्पशन कर रहे होते हैं, खर्च कर रहे होते हैं। What is the lowest level of income at which saving is positive? Okay, so saving का फॉर्मूला क्या होता है? Saving is equal to income minus spending. Income minus spending. So income आपके पास 3000 है, minus spending 3150. So सेविंग यहाँ पे नेगेटिव होगी, -150 होगी। 3300 माइनस 3375, तो यहाँ पे 75 माइनस सेविंग है। 3600 माइनस 3500, यहाँ पे सेविंग आपके पास अब पॉजिटिव होगी क्योंकि इनकम ज़्यादा है, कंजम्पशन कम है। सो 3600 आपका लोएस्ट लेवल है। उसके बाद आगे भी आपकी सेविंग पॉजिटिव जा रही है, लेकिन द लोएस्ट लेवल ऑफ इनकम, क्योंकि एग्जामिनर कह रहे हैं कि वो लोएस्ट लेवल ऑफ इनकम बताएं जहाँ पे सेविंग पॉजिटिव है। सो सबसे पहले यहाँ पे यानी लोएस्ट 3600 पे आपकी सेविंग पॉजिटिव हो गई थी, तो ऑप्शन बी को हम चूज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इज, अच्छा किसी को कंफ्यूजन हो तो अगेन आप यहाँ पे पूछना चाहें पूछ सकते हैं, अदरवाइज आपके पास ये यूट्यूब पे भी ये वीडियो अवेलेबल रहेगी। What can a central bank increase in order to reduce consumer borrowing? जी क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोगों ने सोच लिया था कि क्या होना चाहिए। सेंट्रल बैंक बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जैसे है जो करेंसी इशू कर सकते हैं।
अगर गवर्नमेंट सॉरी अगर सेंट्रल बैंक बोरोइंग को रिड्यूस करना चाहता है, यानी गवर्नमेंट चाहती है कि कम लोग बोरो करने, बैंक से कम लोन्स लें, तो क्या करना चाहिए सेंट्रल बैंक को? इसका ऑप्शन है डी, द रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेंट्रल बैंक शुड इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते हैं तो लोग सेव करते हैं, बोरो नहीं करते। जी ठीक है मनाल बेटा, बिल्कुल सही आंसर है आप। क्वेश्चन नंबर 12 को ट्राई करें जरा। अगेन जो ट्रिक बताया था कॉस्ट वगैरह का, वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट आप। जी ओके, ठीक हो गया, आप लोगों ने इसके बारे में सोच लिया। मनाल आपका आंसर सही है, और इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सेज द टेबल शोज द आउटपुट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ स्मॉल फर्म। व्हाट इज average fixed cost of producing 10,000 units of output? So 10,000 is quantity. We have to basically write down formula of average fixed cost, that is equal to fixed cost divided by quantity produced. Examiner has given us quantity that is 10,000, तो यहाँ पे आप 10,000 put कर दें, and examiner has given us the table. अब इसमें से आपको fixed cost find करनी है, fixed cost की value। fixed cost का trick बताया था कि जो zero level of output पे cost हम pay कर रहे होते हैं वो fixed cost होती है। so 50,000 is the fixed cost। इसको जब हम solve करेंगे, 4 जीरो आप इसके साथ cancel कर लें, 5/1 is equal to 5, so $5 is the correct answer। अगेन आई बिलीव कि आपको समझ आ गई होगी। अगेन अगर आपको समझ ना आई हो, पूछना चाहें पूछ सकते हैं, और अगर बाद में टाइम निकले तो इसको आप बाद में भी वीडियो को देख सकते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 दोनों को कर लें जरा ट्राई। जी ओके, सो बिल्कुल सही, आप लोग इसको अटेम्प्ट करें माशाल्लाह से। क्वेश्चन नंबर 13 इज, सबसे पहले 14 कर लेते हैं, ये ज़रा छोटा क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। फर्म एक्स सप्लाइज ब्रिक्स एंड डिसाइड्स टू मर्ज विद वाई दैट आल्सो सप्लाइज ब्रिक्स। तो दोनों फर्म्स जो हैं
वो ब्रिक्स के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, दोनों सेलर हैं, तो सेम इंडस्ट्री सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन हो, तो इसको हम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहते हैं. इंटीग्रेशन इज बेसिकली ये मर्जर इज बेसिकली व्हेन टू और मोर फर्म्स कंबाइन देयर बिजनेस. तो तीन तरह की इंटीग्रेशन होती है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कॉन्ग्लोमरेट. यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है बिकॉज दोनों बिजनेस एक ही इंडस्ट्री में है, सेम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे, इसलिए हम इसको नाम देंगे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का. Question number 13 is a firm has fixed cost of $1,000. This is fixed cost. The table shows the variable cost at different levels of output. If the goods are sold at $500 each, how much profit will be made from the sale of four units? So this is 4 units. और अगर प्राइस आपके पास 500 है, तो 4 यूनिट्स सेल करने की जो आपके पास टोटल रेवेन्यू आएगा वो कितना होगा. 500 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आपके पास आ जाएगा 2000. ठीक है. अब आपको टोटल कॉस्ट चाहिए $4000 पे, 4000 यूनिट्स पे. वेरिएबल कॉस्ट आपके पास 350 है, फिक्स कॉस्ट आपके पास 1000 है. सो इनको ऐड कर लें, क्योंकि टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट आपके पास 1000 है, वेरिएबल कॉस्ट 350 है 4 यूनिट्स पे, तो 1350 ये टोटल कॉस्ट बन जाएगी. सो प्रॉफिट अब आपको फाइंड करना है. प्रॉफिट का फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. टोटल रेवेन्यू आपके पास 2000 है, टोटल कॉस्ट आपके पास 1350 है, तो इसको जब हम करेंगे तो 650 आपके पास आंसर आ जाएगा. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. जी ओके. सो होप यू गॉट दिस पॉइंट. अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं, और अदरवाइज द सेम थिंग कि आप इसकी दोबारा से देखना चाहें तो देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 और 16 और 17 भी आते हैं, नज़र आ जाएगा. एक सेकंड में थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देते हैं. ये लीजिए 15 16 17 तीनों क्वेश्चन जरा अटेम्प्ट कर लें. या फिर क्विकली मैं इसको एक्सप्लेन करता जाता हूँ, आप लोगों को होपफुली समझ आती रहेगी, और जहाँ पे कंफ्यूजन हो वहाँ पे आप इसको मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 15 इज हु ओन्स पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन. पब्लिक सेक्टर को बताया था गवर्नमेंट को कहते हैं. सो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी होती हैं. क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट आर टू एम्स दैट गवर्नमेंट नॉर्मली pursues when managing the performance of a whole economy. पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं तो जो मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं उनको हम देख लेते हैं. To encourage an increase in production and prevent high inflation. So this is correct answer, क्योंकि गवर्नमेंट इस चीज को फोकस कर रही होती है. Okay, so question number 17 is what is most likely to be the responsibility of a central government? The provision of immigration officials at an airport. This is basically the responsibility of central government. ये इमिग्रेशन ऑफिशियल्स कौन होते हैं? जो एयरपोर्ट्स या सी पोर्ट्स पे बेसिकली होते हैं, और ये पीपल कमिंग एंड लिविंग द कंट्री, उनके डॉक्यूमेंटेशन और उसका जो प्रोसीजर है उसको ये फॉलो करवा रहे होते हैं. और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18. जी क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में थोड़ा सा ये टेक्निकल ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा सा पहले आप पढ़ लें, दफा सोच लेंगे क्या आंसर होना चाहिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. आई बिलीव कि इनकी आपको बेसिक डेफिनेशन पता होंगी. प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव, प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है. कॉर्पोरेशन टैक्स बेसिकली बिजनेस प्रॉफिट्स पे लग रहे होते हैं. इनडायरेक्ट टैक्स सेल्स टैक्स को कहते हैं, जो गुड्स की प्राइसेस में शामिल होता है. प्रोग्रेसिव टैक्स इनकम बढ़ने के साथ टैक्स रेट बढ़ता जाता है. रिग्रेसिव में इनकम बढ़ने के साथ टैक्स रेट कम होता रहता है. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 18, इसको जरा एक दफा पढ़ लें, मैं समझा देता हूँ अभी, बट बिफोर दैट आप इसको देख लें कि पूछ क्या रहे. जी ओके. सो होपफुली आप लोगों ने पढ़ लिया होगा. द टेबल शोज अ टैक्स दैट इंडिविजुअल
would pay at different levels of disposable income. इनकम अगर 10,000 है तो टैक्स 0 है, इनकम 20,000 पे टैक्स 2,000 है। सो यहाँ पे ये 0% टैक्स रेट, यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ टैक्स रेट 0%, यहाँ पे 10% बनेगा, यहाँ पे 13% है, और ये 15% टैक्स रेट है। ये मैंने कैसे क्विकली फाइंड कर लिया, जस्ट मैंने क्या किया, जो टैक्स है लाइक 2,000 उसको इनकम पे यानी 20,000 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो ये मेरे पास 10% आ जाएगा। इसी तरह से 4,000 ओवर 30,000 इंटू 100 कर लें 13% आ जाएगा। 6,000 ओवर 40,000 इंटू 100 करें 15% आ जाएगा। तो यहाँ पे इनकम बढ़ती जा रही है 10, 20, 30, 40,000, टैक्स रेट 0, 10%, 13 एंड 15% बढ़ता जा रहा है। इनकम बढ़ने के साथ टैक्स रेट बढ़ता जाए तो इसे प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। टैक्स रेट इज प्रोग्रेसिंग विद द प्रोग्रेस ऑफ इनकम। क्वेश्चन नंबर 19 is the government wants to reduce consumption of cigarettes. अगर सिगरेट देखें एक डीमेरिट गुड है, इसकी कंजम्पशन कम करना चाहते हैं तो आप उस पर टैक्स लगा दें, इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ा दें। इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली प्राइसेस में शामिल हो जाता है, और जितना इनडायरेक्ट टैक्स होगा प्राइसेस उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, एंड एज अ रिजल्ट आपका जो कंजम्पशन है सिगरेट्स की वो कम होती जाएगी। Question number 20 is which group should not be included in measurement of unemployment? अनएम्प्लॉयमेंट में अनएम्प्लॉयड पीपल में 18 to 60 वो सारे लोग आते हैं who are willing and able to work but they are also actively searching for job. So इसमें ऑप्शन सी आंसर होगा स्टूडेंट्स ओवर 18 years continuing with full time education. So ऐसे स्टूडेंट्स जो एजुकेशन अभी हासिल कर रहे हैं लेकिन वो दे आर नॉट एक्टिवली सर्चिंग फॉर जॉब बट दे आर अबव 18 years एज, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन अनएम्प्लॉयमेंट measurement because वो full time students में consider होते हैं and they are not actively searching for job. अगर अनएम्प्लॉयड में शामिल करने लोगों को तो लाजमी है कि वो लोग दे मस्ट बी एक्टिवली सर्चिंग फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ी इन्फॉर्मेशन बड़ी है, इसको आई वांट यू टू रीड दिस फर्स्ट, ताकि आपको जब मैं समझाऊं तो पता चले कि आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी असल में। जी हमारे पास 9 क्वेश्चंस रह गए एंड आई विल ट्राई कि इनको नेक्स्ट 7-8 मिनट्स में हम फिनिश कर लें इंशाल्लाह। होपफुली आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। द टेबल शोज द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी रियल जीडीपी ग्रोथ ऑफ अ कंट्री इन 2014 एंड 18। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3% था, अब 10% हो गया। रियल जीडीपी परसेंटेज ग्रोथ 4% थी, अब ग्रोथ रुक गई, कम हो गई, नेगेटिव में चली गई, -2% हो गई। क्वेश्चन में वो ये पूछ रहा है विच कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी मेजर्स would be most effective in returning the economy to 2014 level of activity। यानी कि वो चाह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट दोबारा से 10% से 3% पे आ जाए, यानी कम हो जाए, ग्रोथ रेट बढ़ जाए -2% से 4% पे इंक्रीज हो जाए। ऐसा करने के लिए क्या करना होगा? डिक्रीज इन डायरेक्ट टैक्सेस एंड इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि डायरेक्ट टैक्स अगर बढ़ाएंगे तो उससे आपकी जो जीडीपी है वो तो बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट अगर इंक्रीज करेंगे तो उससे इन्वेस्टमेंट्स कम होना शुरू हो जाएंगी, तो इससे डाउटफुल है कि ये एम्स अचीव नहीं होंगे। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से भी, अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करती है तो भी आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट कम होने का चांस नहीं होता। इंक्रीज इन डायरेक्ट टैक्स, इससे भी नहीं होगा। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड डिक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, इससे ये एम्स अचीव हो जाएंगे। क्यों? उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब बढ़ेगा, मीन गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे, तो लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कंट्रोल हो जाएगा, 10% से 3% आने पे चांसेस हैं, और इंटरेस्ट रेट कम है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ेंगी, उससे ग्रोथ भी अचीव होने के चांसेस हैं और अनएम्प्लॉयमेंट कम होने के चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इसको क्विकली पढ़ लें। क्वेश्चन 23 को भी क्विकली पढ़ लें फिर, ताकि मैं इसको समझाऊं तो आपको समझ आए कि क्या मतलब है इसका, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है और लॉजिक क्या है उसकी।
Okay, so question number 22 is an economy is experiencing rising prices. Which government policy will help reduce consumer expenditure? आपको ढूंढनी वो ऑप्शन ढूंढनी है जिससे कंज्यूमर की स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो रहा हो. Introducing compulsory saving for income earners. So this is correct answer. जब आप लोगों के लिए कंपल्शन कर देंगे, उनके लिए उनको फोर्स करेंगे कि सेविंग उन्होंने फोर्स सेविंग करनी है, तो ज़ाहिर स्पेंडिंग कंट्रोल हो जाएगी. Question number 23 is some goods take a greater percentage of typical household's total spending than others, and how is this accounted for the construction of consumer price index? जी, तो इसका आप बताइए आप लोग. ओके, ओके, सो इसके लिए बी आंसर हमारे पास सही है. 23 के लिए बी. ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दोनों. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए डेफिनेटली हम जब किसी का देखना चाह रहे हैं कि कौन कितना खर्चा करे, तो उसके लिए हम वेट का यूज़ करते हैं. वेट बेसिकली स्पेंडिंग पैटर्न को शो करते हैं कि कौन कितने पैसे किस चीज़ पे खर्च करे. वेट का लफ्ज़ बेसिकली वही आम जो हम वेटेज के लिए यूज़ करते हैं कि हम किस चीज़ को कितना वेटेज देते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं. दैट इज बेसिकली वेट. क्वेश्चन नंबर 24, इसको पढ़ें ज़रा. 25 को भी पढ़ें, क्विकली एक दफ़ा पढ़ लें ताकि आपको समझाते हुए समझ क्लियर आ जाए कि क्या क्वेश्चन था, क्या रिक्वायरमेंट है इसकी. जी, ओके, सही है. तो 24 का आंसर डी आप कह रहे हैं, बिल्कुल डी आंसर सही है. इन कंट्रीज with absolute poverty, low income can start a process that keeps income low. What are the stages of this process? यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब है कि जब लोगों के पास पैसे इतने कम होते हैं कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज भी पूरी नहीं कर सकते, उसको हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं. इसके अगेंस्ट एक टर्म होती है रिलेटिव पॉवर्टी. रिलेटिव पॉवर्टी के केस में लोग अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं, वांट्स को भी, सम ऑफ द वांट्स कैन बी सेटिस्फाइड, बट वो रिलेटिव टू अदर पीपल दे थिंक दैट दे आर रिलेटिवली लेस प्रिविलेज. लेकिन यहाँ पे हम बात करें एब्सोल्यूट पॉवर्टी की, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी बेसिकली का मतलब है कि लोगों की ऑलरेडी इनकम कम है और फर्दर वो उसी लो इनकम में रहते हैं, तो इसको विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी भी कहते हैं. सो आपकी इनकम इनिशियली लो है, इसलिए आप सेव कम कर सकते हैं. सेव कम करेंगे तो इन्वेस्ट भी कम कर सकेंगे. जब इन्वेस्टमेंट कम होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी लो रहेगी, एज अ रिजल्ट आपकी इनकम फिर से लो रहेगी. सो इसको, इस साइकिल को आप इस तरह से भी सर्कल को शो कर सकते हैं कि आपकी शुरू में लो इनकम है. लो, आई एम यूजिंग लो इनकम, बेसिकली एब्रिविएशंस यूज कर रहा हूँ. लो इनकम है तो आप सेव भी कम लो करेंगे. जब लो आपके पास सेविंग लो है तो आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट भी कम रहेगी. जब इन्वेस्टमेंट कम है तो आपकी प्रोडक्टिविटी लो रहेगी, प्रोडक्टिविटी लो होने की वजह से अगेन आपकी इनकम लो रहेगी. ये बेसिकली विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी से कहते हैं. Okay, so question number 25 is which factor in the world's low income countries limits economic development? Economic development का मतलब होता है कि आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कम है. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होने की मेन वजह होती है कि आपका जीडीपी पर कैपिटा कम होता है, और ऐसा तब होता है जब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, जब आपकी रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही होती है. एक रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज करी कंटिन्यूसली और फास्टली इंक्रीज करी, जिसकी वजह से आपका जीडीपी पर हेड या पर कैपिटा लो होता है और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ लो रहती है. क्वेश्चन नंबर 26 को क्विकली मैं बता देता हूँ. वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. द टेबल शोज द परसेंटेज एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर इन 4 कंट्रीज. व्हाट इज likely to be the most developed country? सबसे अमीर कंट्री कौन सा होगा? सो रिचेस्ट कंट्रीज वो होते हैं जो जिनका मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट टर्शियरी सेक्टर में यानी सर्विस में होता है. तो सबसे ज़्यादा सर्विस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन ए में है. और सेकेंडरी
टर्शरी से कम होते हैं और प्राइमरी में बहुत कम लोग होते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगर लीस्ट डेवलप कहता तो फिर इसको ऑपोजिट कर देते हम लोग, बिल्कुल। जी सही है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट causes the birth rate to fall in a country? 27 का बी बोल रहे हैं आप? ओके, अगर आप बर्थ रेट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन सी की तरफ जाना होगा, मेडिकल सप्लाईज एंड हेल्थ केयर इम्प्रूव। अगर ऐसा होगा तो बर्थ रेट कंट्रोल पॉसिबल होगा। जी, इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब ये नहीं कि बर्थ रेट कम हो गया, इसका मतलब है जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो मर जल्दी रहे, यानी उनकी डेथ हो जाती है, तो बर्थ रेट तो रहेगा, ज़्यादा रहेगा। सी आंसर सही था उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 28 इज अ कंट्री विशेस टू इंक्रीज द करंट अकाउंट सरप्लस। करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब है कि आपकी एक्सपोर्ट्स वैल्यू आपकी इंपोर्ट्स वैल्यू से ज्यादा होती है। एक्सपोर्ट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन इंपोर्ट्स वैल्यू। सरप्लस में जाना चाहते हैं तो एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, इंपोर्ट्स कम करें। इंपोर्ट्स कम करने के लिए हम क्या करते हैं, टैरिफ बढ़ा देते हैं। इंक्रीज इंपोर्ट टैरिफ, ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। टैरिफ इज अ फॉर्म ऑफ टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। इम्पोर्टेड गुड्स पे जितना टैक्स आप बढ़ाते जाएंगे आपका वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट कम होता जाएगा, एज अ रिजल्ट आप सरप्लस में जा सकते हैं। Question number 29 is the table shows countries' exports and imports. What was countries' balance of trade in goods and services? Balance of trade find करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, balance of trade is equal to exports minus imports. सो एक्सपोर्ट्स हमारे पास कितनी है, एक तो एक्सपोर्ट्स हमारे पास 200 आ गई, एक एक्सपोर्ट आ गई 3500। सो 235 हमारे पास एक्सपोर्ट है। इंपोर्ट कितनी है, 190 प्लस 38, ये कितना मंथ है, 190 प्लस 38। जल्दी से कोई कैलकुलेट करके बता सकते हैं ज़रा? ये हमारे पास हो जाएगा 8 और 12 228। तो इनका जो डिफरेंस है वो $7 million का डिफरेंस, जो कि पॉजिटिव है। एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंपोर्ट्स कम है, तो इसलिए हम सरप्लस का नाम देंगे इसको। सी ऑप्शन हो जाएगी, सरप्लस ऑफ $7 million। जी बिल्कुल। अच्छा एक सेकेंड। ओके, सो ए आंसर तो कौन से क्वेश्चन का आप कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 7 लिख लिया करें जो भी क्वेश्चन का आंसर करें। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा सा आपको अनाउंस कर दूं कि हम इंशाल्लाह ताला एएस की क्लास भी कंटिन्यू करेंगे। अभी जो अक्टूबर नवंबर अटेम्प्ट के लिए अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हों जो ज्वाइन करना चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रीन वॉल एकेडमी में रब्ता करेंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो बता देंगे आपको। और इसी तरह से I don't teach only O levels, I teach A levels, AS and A2 as well. So आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं ग्रीन हॉल के साथ। में काफ़ी टाइम से कनेक्टेड हूँ, ऑनलाइन क्लासेस इनकी मैं कंडक्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होना चाहिए? द डायग्राम शोज द वैल्यू ऑफ a country's exports and imports of goods over 5 years. Imports आपकी filled एरिया से और blank एरिया आपका exports को शो कर रहा है। Between which two years did the country have an increase in the value of imports and improvement in its balance of trade? Improvement in balance of trade का मतलब है कि आपका सरप्लस, आप सरप्लस में रहें और साथ में इंपोर्ट्स का वॉल्यूम वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी। तो आप देखिए सारे सालों में हम सरप्लस में, इस साल में भी सरप्लस में है क्योंकि एक्सपोर्ट ज़्यादा इंपोर्ट्स कम है। इस साल में भी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा इंपोर्ट्स कम है, इस साल में भी, इस साल में भी, इस साल में भी। सो सारे सालों में हम सरप्लस में हैं। सो सरप्लस सरप्लस सरप्लस, ऑल ईयर्स आर बेसिकली शोइंग सरप्लस। लेकिन अब आपको कंडीशन ये अप्लाई करनी है कि इंपोर्ट्स की वैल्यू इंक्रीज हुई है फिर भी सरप्लस में रहे, तो इंपोर्ट्स की वैल्यू आपकी मैक्सिमम यहाँ तक जा रही है। तो ये 2 साल हैं, 3 and 4 years, जिनमें इंपोर्ट्स की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है, लेकिन स्टिल वी आर इन सरप्लस। सो 3 and 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो दिस इज इट। और अगर आप कुछ कहना चाहें, कमेंट्स देना चाहें तो चैट में आप लिख सकते हैं कि आज की क्लास से आप लोगों ने क्या सीखा और क्या आप लोगों के कुछ इम्प्रूव हुआ। आप अगर YouTube चैनल पे जाएंगे ग्रीन हॉल के तो वहाँ पे भी आपको ये सेम वीडियो आपको वहाँ पे भी अवेलेबल होगी, वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप अपने कमेंट्स वहाँ पोस्ट करना चाहें कि जो आज की क्लास है उससे कोई लर्निंग आपकी हुई और कितनी हुई और कितना कॉन्फिडेंस आप लोगों ने गेन किया, तो वो वहाँ पे भी आप
कर सकते हैं। और इस टाइम पे जो आप लोग मार्क कर रहे थे वो भी देख लें कि आप लोगों के क्या मार्क्स आ रहे हैं जी। और इसके साथ ही फिर क्लास हम फिनिश कर देते हैं। आप बस जस्ट अपने अपने जो आप लोगों ने जो आंसर सोचे थे और जो असल आंसर थे उसमें आउट ऑफ 30 आप लोगों के कितने जो थे क्वेश्चंस वो सही आ रहे हैं, वो सिर्फ आप चैट में अगर लिख दें मेरे लिए तो थोड़ा सा आसानी होगी समझने में कि आपकी क्या प्रिपरेशन का लेवल है इस टाइम में। ओह दैट्स ग्रेट कुमार 28 ऑफ चले ठीक हो गया। जो भी मार्क्स हैं वो आपकी अपनी इवैल्यूएशन थी, आप लोगों ने देख लिया होगा क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस तो फिर मैंने क्विकली खुद ही डिस्कस कर लिया, आप लोगों को मैंने चांस ही नहीं दिया कि आप उसको सॉल्व करें। सो दिस इज इट फॉर दिस क्लास। और आप लोगों की मैं शक्लें तो नहीं देख सका लेकिन एटलीस्ट आप लोगों के मैंने नाम देखे हैं, अयान खान, इलफ, इमरान, मनाहिल, मीमी एंड कुमार साहब। ठीक है। सो आई विश ऑल ऑफ यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। और एक 6 to 7 आवर्स की क्लास होगी आज की, तो 2 घंटे की क्लास है। 6 to 7 आवर्स की क्लास एक मैं कंडक्ट करूंगा, उसमें डिटेल्ड होगा 30 जुलाई को कमिंग जो आपका फ्राइडे है 3:45 पे क्लास होगी और 6 to 7 आवर्स कंटिन्यू रहेगी। उसमें पूरा सिलेबस हम रिव्यू कर रहे होंगे, साथ में टॉपिकल एमसीक्यूज भी कर रहे होंगे और ईयरली पेपर्स भी हम 2-3 पेपर्स करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कमर बलोच मेरा नाम है और वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू हेल्प द स्टूडेंट्स एट दिस सिचुएशन, क्योंकि ये जो पेंडेमिक का सिनेरियो था ज़ाहिर है आप लोगों ने भी काफ़ी स्ट्रगल किया। तो एज अ टीचर हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम जो कर सकते हैं बच्चों के लिए करने की कोशिश करें। ठीक है। सो दिस वाज दिस वाज अ वंडरफुल सेशन विद ऑल ऑफ यू। आपकी काफ़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन रही एंड सी यू at some future time inshallah. So this is it. Thank you. Allah Hafiz.